Good morning class. Today I will teach you gravitation. What is gravitation? The force between two heavenly bodies. The force between two heavenly body is called gravitation force, and the force between earth and other heavenly body, earth and other heavenly body is called gravity. अर्थ और किसी दूसरे हेवनली बॉडी के बीच में अगर जब फोर्स होगा वो ग्रेविटी कहलाएगा। और किसी भी दो हेवनली बॉडी के बीच में, हेवनली बॉडी आखिर कहते हैं क्या? किसी को हेवनली बॉडी कह सकते हैं जो इस यूनिवर्स में हो या इस यूनिवर्स के बाहर हो। अर्थ इज आवर हेवनली, अर्थ इज ऑल्सो हेवनली बॉडी, सन इज ऑल्सो हेवनली बॉडी, मून, एनी प्लैनेट, स्टार और satellite which are present in this galaxy or in this universe are called heavenly bodies. So Newton is the first scientist who determined the force between these two heavenly bodies. He says when two heavenly bodies are kept close to each other, consider when two heavenly bodies, he says, Newton, he means Newton, यहाँ से मतलब है, says when two heavenly bodies are kept close to each other, they will experience force. The force experience force. This force is attractive. ये force attractive होता है। मानते हैं कि this force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the separation between two bodies. मानते दो बॉडी है, एक का मास m1 है, दूसरा बॉडी इसका मास m2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन r है, तो F is directly proportional to m1 into m2 and F is inversely proportional to r square. This is first, this is second. दो बॉडी हेवनली बॉडी के बीच के फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और अगर उसमें अर्थ इन्वॉल्व हो जाएगा तो फोर्स कहलाएगा ग्रेविटी। बस यही ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों एक ही चीज है, लेकिन अर्थ के केस में स्पेशली ग्रेविटी बोला गया ताकि इससे हमको पता चले कि अर्थ उसमें एक पार्ट है। इसको सबसे पहले न्यूटन बताया। ही सेज व्हेन टू हेवनली बॉडी आर केप्ट क्लोज टू ईच अदर। केप्ट क्लोज होना जरूरी नहीं है कि क्लोज ही हो, यहाँ फार डिस्टेंस, टू हेवनली बॉडी आर केप्ट क्लोज टू ईच अदर अच्छा बात नहीं है। व्हेन टू हेवनली बॉडी आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, to each other, they will experience force. This force is directly proportional to product of their masses. उसके masses का product directly proportional होता है, and inversely proportional to a square of the separation between two bodies. मानते दो heavenly body है जिसका mass m1 m2 है, दोनों के बीच का separation r है, तो F जो होगा directly proportional to m1 into m2 होगा and inversely proportional to r square होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए।
ओके। F is directly proportional to m1 into m2 by r square। मान लिया हेवनली बॉडी है जिसका मास m1 है और दूसरा हेवनली बॉडी जिसका मास m2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन r है। तो F is directly proportional to m1 into m2, F is inversely proportional to r square। फर्स्ट और सेकंड से चले तो F is directly m1 into m2 by r square हो गया। F is equal to G m1 into m2 by r square, where G is constant, where G is constant called universal gravitational constant। its value 6.63 into 10 to the power minus 11 kg Newton meter square kg minus 2। 6.67 into 10 to minus 11 कुछ ऐसे ही है। तो it is why it is called universal gravitational constant, why it is called universal gravitational constant क्यों कहा जाता है? इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज its value does not vary from place to place due to pressure, temperature, etc। ये सब किसी भी कारण से इसका वैल्यू वैरी नहीं करता है। इनवर्स के इस कोने में अगर जो वैल्यू है, किसी दूसरे इनवर्स में भी जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू यही है, इसलिए इसको इनवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहा जाता है। इसमें एक और आता है स्मॉल जी, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर F बराबर मान लें कि एक G है, स्मॉल g इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g, दोनों में क्या रिलेशन है ये पूछता है, पढ़ना भी है। तो मानते कोई अर्थ है, कोई बॉडी है, अर्थ है, कोई बॉडी जिसका रेडियस स्मॉल r है, इसके सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश है और इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r है, इसका मास m है, इसका मास m है। तो दोनों के बीच फोर्स कितना होगा? फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंसीडर देयर बी ए बॉडी हैविंग मास m, रेडियस स्मॉल r, kept on the earth surface having mass capital M, radius capital R, G dash be the acceleration due to gravity at the center of the body। तो दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू G M इंटू M बाई R प्लस R स्क्वायर, R प्लस R का होल स्क्वायर, एंड द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी, अर्थ attracts the body
is mg dash F is equal to mg dash. So from first and second, mg dash is equal to g capital M small m by r plus r का होल स्क्वायर, स्मॉल m से स्मॉल m कर लिया, दैट इज g dash is equal to gm by r plus r का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला हुआ. इफ r is very very greater than r, then r should be neglected. In that case, g dash is equal to g. Therefore, g is equal to हो जाएगा gm by r square. ये भी बहुत पॉपुलर फार्मूला हुआ. g और g में ये रिलेशन निकला कि g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर. इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. तो बताते हैं इसके बाद. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. एक अर्थ बॉडी है जिसका मास m है, रेडियस r है. ये अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है जिसका मास m है, इसका रेडियस r है. इससे डेंसिटी ऑफ द अर्थ भी निकाल सकते हैं. अभी निकालते हैं, तब उसके बाद रिलेशन बताएंगे. तो दोनों एक दूसरे को कितना फोर्स अट्रैक्ट करेगा, इस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा. और अर्थ एक फोर्स अपना तरफ लगा रहा है जो mg लगाता है, वो कितना लगा रहा है mg डैश. दोनों इक्वल हो गया. अगर r बहुत बड़ा है r से तो g डैश टेंस टू g हो जाएगा. अगर r को नेग्लेक्ट कर देंगे तो g डैश टेंस टू g हो जाएगा. तो g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर. r को छोड़ देंगे तो इफ रो बी द डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, if rho be the average density of earth, then g is equal to होगा g into 4 by 3 pi r cube by r square into rho. एक r से r कट गया तो rho बराबर हो जाएगा 3g by 4 pi capital G R 4 pi capital G R. Rho is equal to, ये फॉर्मूला हुआ. मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ निकलेगा. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डिफरेंस बिटवीन, रिलेशन बिटवीन हुआ. अब डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. The difference between capital G and small g. It is universal gravitational constant and its value G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg minus 2. स्मॉल जी का क्या होगा? The value of small g, varies from place to place. ठीक है. इसका SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2. इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इसका होगा इट इज वेक्टर क्वांटिटी. इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, उसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है.
ठीक है, इसका यही बहुत है इतना डिफरेंस, और भी डिफरेंस हो सकता है, आप देखिएगा उसको खोजिएगा, मिलेगा तो हमको बताइएगा भी, या हम भी लिख के देंगे अगले क्लास में। अगर पूछिएगा कोई और क्वेश्चन तो देखेंगे, इसको जोड़ेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी क्या बताया, द वैल्यू ऑफ जी varies from place to place on the earth's surface, that is at pole it will be maximum, and मतलब अगर ये अर्थ सरफेस से रह दिया, ये पोल है, तो यहाँ जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। वैल्यू ऑफ जी विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम एट पोल। इसका तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी घटेगा, नीचे जाएंगे फिर भी घटेगा। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ इट विल बी जीरो। तो किसी अंदर में किसी पॉइंट पर वैल्यू अगर निकालने के लिए, यहाँ तो जी जीरो है, अंदर में किसी वैल्यू को निकालने के लिए जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, वेयर डी इज द डेप्थ। तो एम जी डैश बराबर एम जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, एम जी डैश बराबर एम जी माइनस एम जी डी बाई आर। इसको इधर ले आते हैं, एम जी माइनस एम जी डैश बराबर एम जी डी बाई आर। तो ये लॉस इन वेट इतना होगा, एम जी डी बाई आर। परसेंटेज लॉस करेंगे तो एम जी से डिवाइड कर देंगे, डी इंटू 100%, इतना परसेंट लॉस होगा। अगर ये नीचे गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक फॉर्मूला सिर्फ याद करें, कैसे आया वो हायर क्लासेज में पढ़िएगा। बस इतना भी जानिए कि इतना ये फॉर्मूला होता है। नीचे अगर किसी वैल्यू पॉइंट पर जी का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू कैसे वेरी करेगा, ऊपर जाएंगे तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। या बस इतना ही रखिए, ये ज्यादा अच्छा एक्यूरेट है, इसको छोड़ा जा सकता है हायर क्लासेज में। इसमें भी लॉस इन वेट निकाल सकते हैं, एम जी माइनस एम जी डैश इज इक्वल टू, लॉस इन वेट इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस एम जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, एम जी इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये लॉस इन वेट है। और परसेंटेज लॉस इन वेट कितना होगा, परसेंटेज लॉस इन वेट एम जी से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर बाई एम जी बाई एम जी इंटू 100%। एम जी से एम जी कट गया, कितना बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू 100%। ये परसेंटेज लॉस है। ठीक है, उसके बाद बताते हैं एक और बेसिक डिफरेंस बता देते हैं, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ मास फॉर ए सिस्टम will remain constant. वेट में क्या होगा, वैल्यू ऑफ वेट will vary
फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन ए सिस्टम। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी ये क्या है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा SI यूनिट kg, SI यूनिट न्यूटन। It is measured by physical balance it is measured by spring balance। mass never be zero, weight may be zero, of a body। किसी बॉडी का वेट जीरो हो सकता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले क्लास में हम फिर बताएंगे आगे जो पढ़ना है वेट से रिलेटेड, मास ग्रेविटेशन से रिलेटेड, इस पर न्यूमेरिकल कुछ बताएंगे। थैंक यू और होप कि आपको समझ में आएगा। देखिएगा, याद कीजिएगा, इस एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्लास में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।